Take a deep breath in. Om, breathe out. Let's chant Om 3 times. Breathe in. Ah, Om. Ah, ah, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha. Sakshat Param Brahma. Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. So very warm welcome to this new session of Intro Talk on Nadi Astrology and how you can make perfect predictions. If you are interested in learning astrology, if you have ever thought how one can do prediction, how astrologers do the predictions, how I can know the mysteries of the life, can I learn astrology, can I become an astrologer, then this session would be very interesting for you and you will get a lot of takeaways from the sessions. So if somebody is thinking, can I become an astrologer? Can I do the prediction? Can my predictions be very accurate, like highly accurate, like 90%, 95%? I'll speak in Hindi. अगर आप सब में से कोई ये सोच रहा है कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन पाऊंगा, क्या मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ, क्या मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, क्या मैं अच्छी प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, तो द आंसर इज यस, आप सब लोग कर सकते हैं। बट उससे पहले आप जान लें कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है क्या। सो बिफोर दैट you have to understand what is Nadi astrology. What is this all about? So the whole Jyotish, so before Nadi astrology, we have to go, what is astrology? So astrology in simple words is a GPS for life events, for all the events in the life. And Jyotish starts before the birth of a child and after death of the child or the person. So Jyotish actually starts even before the birth of the child. You know, the pregnant ladies goes to the astrologer and say, you know, can you give me, if suppose cesarean is there, or even before that, when can I have a child? You know, when can I conceive? Will I have a boy or girl? Or when they conceive, then thing is ki, what is the good muhurta for the child, right? So astrology starts even the before the birth of the child, and even after the person dies, if he dies in the panchika or some other muhurta or some other nakshatra, then there are certain rules and regulations to be followed. So after death also astrology is there. Okay. Now the whole story is of 9 planets, 12 rashis and 27 nakshatras. And when I say it's a GPS of life event, what does it mean by GPS? Like when you do go open a Google GPS, like Google Map, and you put one place to another place, then you know how fast you can reach, where is the traffic light, where is the traffic jam, or is there an alternative way? In the same way, astrology is used for the benefit of the mankind. Now, who started astrology? Astrology is given by, there are many thoughts who started astrology, but in my belief, astrology started or given by, I will say given by, you know, the Mahakal, the person who is beyond time, the Shiva. You know, Shiva has given to the Parvati, and Shiva has given them to Saptarishis, and Saptarishis has given them to
all the mankind. Okay, that is how the astrology started. The person who is beyond time can actually see the time and can calculate the time and give you the knowledge of the time. Jyotish, Jyoti Plashi is the third eye of the Vedas. You know, it's a part of, it's a Vedanga. Jyotish is a Vedanga. So, most important thing is, two things. Whenever you leave planet, will go with you. What two things? Everything will be here. Everything, whatever you have earned, whatever is your property, your bank balance, your clothes, your everything will be here. No, nothing will. What will go? Two things with you. First is knowledge, especially the knowledge of Vedanga, and second is your punyakar, your good deeds. Whatever good deeds you have done, that will go with you, because based on that you will be having your, next birth or whatever, wherever you have to go. So your good deeds and your knowledge. You might have seen people, reciting Bhagavad Gita or some Shastras, some Shlokas, even from the childhood. From where they have got? They have not gone to the school. They have got that from the past birth. So I usually say, once a Jyotish will always be the Jyotish. Once you are astrologer, you will be astrologer till eternity. That is my belief. And maybe you have to play some other roles in some different lifetimes. That is one other thing. But maybe you are astrologer in this birth, then maybe next birth you are something else. But then again, after 2-3 births, you might be astrologer again. So once an astrologer will always be astrologer. That is what I believe. Because once this knowledge is passed to you, it will be with you forever. And I think that is why you are here. So many people are here. Because someday, some in lifetime, it has been passed to you. And that's how your interest has been created in learning astrology. People say, can I learn astrology? I said, whosoever has an interest, because interest doesn't come, just happens. It doesn't come by your choice. It actually happens. It doesn't come, it's like by luck or by anything, The interest come because it is there in your chart. It is there in your destiny. That's why interest is there. But every time you can't fulfill your interest. हर time आप अब interest पूरा नहीं कर पाते. You can't fulfill your interest because sometimes in some lifetime you don't get a guru, right teacher, or sometimes you tried a lot but unable to understand. So when you get the right guru and the right time, that is the time you learn astrology. Okay. Now, there are so many branches of astrology: Vedic astrology, Nadi astrology, Gemini, then there are so many forms. Then there's a thumb impression, that is also called Nadi astrology. That is more, people know more of a thumb as Nadi astrology. But here, I'm talking about Nadi Nakshatra, which is based on the nakshatra, which is based on the constellation. See, there are various forms there are more than 112 nadis. There are many forms of nadi, Dhru nadi, Shiva nadi. There are so many forms of nadi. But this form of nadi is given by Bhrigu Rishi, and this is nakshatra nadi, where you, based on the day, time, place of birth, you actually create a chart and read the chart, because that chart has very detailed analysis of nakshatra and nakshatra lord. See, all the world who does Vedic Jyotish, all the Vedic Jyotish is very good. And the foundation of Nadi Jyotish is also Vedic Jyotish. It is not something separate. So foundation is Vedic Jyotish, but for prediction, Vedic Jyotish is not successful. It will give you maximum prediction of 50 to 60%. And that is not my view. It is a view of hundreds of astrologers who are practicing for generations, that you can't cross 50-60% in Vedic astrology, Vedic Jyotish. But in Nadi astrology, after learning properly, practicing properly, the minimum accuracy is 90%. Minimum. Minimum accuracy is, maybe even if I lower down a little bit, with less practice, 85% to 90%. Okay, that's the minimum accuracy of, because why it is, because you don't do, as you see,
Whenever you go to Ayurveda doctor, he sees your nadis and tells you what are diseases, what are things you have. In the same way, in the whole zodiac, when we see the nakshatras, we know whatever is going on in your life. So nakshatras are the nadis of the universe, or the whole play which is happening in the universe, which is happening in your body also. Okay. So based on nakshatra, so if somebody asks me what is the difference between Vedic Jyotish or Nadi Jyotish or, Nadi Nakshatra. So Vedic Jyotish is based on the planet, Rashis, aspects and all those things. That is a surface level. You can't really go deep in that. And that's why the prediction has not more than 50-60%. Nobody can teach you more than that because it is not possible. It is not the capability of the astrologer. Astrologer might be capable, even if any of the good astrologer learn Nadi astrology, they will also be doing 90-95%. It is the technique basically. Suppose I'll say, give example. Somebody asked me what is the difference between Nadi astrology and Vedic astrology. I said, do you know the difference between 2G phone and 5G phone? You can't do many things in the 2G phone. You can't do video call. You can't do application. But in 5G phone, you can do so many things. Right? So that is the difference, the key difference between Nadi astrology and Vedic astrology. Although the foundation is Vedic astrology only. Volume is low. Oh, अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, लो आ रहा है, 1 मिनट रुकिए. अभी आ रहा है वॉल्यूम सबको? Can you hear me? Everybody? Yes, ठीक है. So what was the difference I was saying? Difference क्या है? Vedic astrology, you can't go more. Knowledge is good. Knowledge you can see. Suppose somebody is coming when I get better health, when I get a good job, and you are giving all the gyan, but not telling him exact which month, which year, then the purpose is lost actually. Right? So here the gyan is there, but with the accuracy of predictions. It is not the gyan is not there. Gyan is there. All the knowledge, all the concepts of Vedic astrology, most of that is foundation one, and then that very deep on the Nadi astrology. So you can make perfect prediction. And there are hundreds and thousands of students as of now. See, there are very few astrologers, Nadi astrologers in the whole world. But as of day, there are thousands of the astrologers, not many still, because that will also 0.001%, I would say. Because Vedic astrology may be 5% in the world, but Nadi astrology or 10% or 20%, I don't know the exact figure. But still there are many people who learn Vedic astrology, but Nadi astrology is less than 1%, 0.001% maybe. Okay. Why it has not become popular? Because the calculation were complex and there were no proper software earlier than, and there were no proper teachers were there. I think there are hardly few teachers of Nadi Nakshatra astrology who can teach you perfectly, hardly few. So you have a very good opportunity to learn the Nadi astrology. And I tell you, if you go to any of my students, they are on the Twitter, they are on not on Twitter, on Facebook, basically on Facebook or Insta. You will see that they are practicing after 6 months to 9 months after learning. Usually I give 6 months of teaching and then 3 months of internship. And then the people are eligible to practice on my platform. Like you have so many platforms, Ganesha platform, Ganesha Speaks platform. There are platform like, Astro Talk and something like. So we have our own Nadi platform, which is coming up. So people who are in an internship, they will join that platform and they'll start earning. So my area, my focus is to empower you with good predictions and enable you to earn money for your own. So this is as a profession also, if you want. See, astrology you can use as a profession, as a seva, as a help to other people, part of seva, or as a hobby. I would say, as a hobby or as a seva, as a profession also you can make and you can earn money from that. And there's nothing wrong earning money from Jyotish. Yes, definitely I say all to my student, you donate at least, if you are a full-time kind of person who is lying at the income,
on totally on astrology, then maybe you donate 20%. But if you're a person who has other source of income, then donate at least 40 to 50% of your income in good cause. See, it is not we earn for ourselves, but you donate also, because that will be really helpful. When you donate, the things grows in your life. Whatever you earn, at least you should donate 20 to 20% of it. And rest is your choice. If you have good source of income, you can donate more. And many of my students who donate their whole income, depending on their financial status, okay, and financial needs. So most important is, what I'm saying is, what is how you can make perfect prediction and what is Nadi astrology. So Nadi astrology is a way where through nakshatras, nakshatra lord and planets, by analyzing them, and these are just numbers, who all can learn? Whosoever knows counting between 1 to 10 or 1 to 12, he can learn. Don't worry, I'm 60 age, I'm 18 years, I'm 65 years. My youngest student is 18 years, because before 18 years, it is not yet allowed to me to teach them. Otherwise, I can make an expert even to a 14-year or 12-year-old kid. 14 year is for sure. After 10th, you can teach. But I'm not teaching them for now. But from 18 years, I have student till 75 years. And they all have learned astrology. Okay. So anybody can learn. What is requirement? There is no requirement. The requirement is your dedication. You should attend the class daily. Daily in the sense, every class. There is only 2 hours class per week. Every week you have 2 hours class, not more than that. Okay. People who were not earning anything, they now are earning, 50,000 to 1 lakh per every month. 25,000, 50,000, 1 lakh also. Depending on your dedication and your effort. But 40, 50,000 is average. Minimum fees my student charge after completing the course is 3,100 per chart. And I do help them how you can get the client, how you can make them popular. And now we have our own platform which is coming up. And by the time you will learn, you will have a ready-made platform. If you are expert, you will be enrolled and you have a income coming on sharing basis, maybe 50-50 sharing basis, because client and marketing and everything will be done by the company. So this is going to be become very big, very, very big in 1 year, 2 years time. Very big. I tell you, you can't even imagine. And astrology is a profession which will be on the peak for next 20 to 30 years, I tell you. Because next 10, 20, 30 years will be so much disturbed, so much of imbalance in the nature, in the universe, in the world, that people will come to astrologers for the guidance. And if you are the one, you definitely, first of thing, before anything, you will be able to do right guidance to the people. That's why I need many, many, many astrologers. I don't want everybody comes to me. People said, Panditji, you are killing your business. You are teaching everybody, how people will come to you. I said, whatever is written in my fate, it will come to me. Don't worry about it. I have the guidance from the divine that I have to teach this knowledge to the world. So I am teaching. If I didn't have the guidance, maybe I would have not been teaching this Nadi astrology. Maybe I'm doing my own practice and let the people queue for 6 months, 1 year, 2 years. Right now, also the waiting time is 1 month and much more. Right? So, if you learn, there will be many good astrologers in the world and people will come to you. And investment, what you need to learn, the investment is peanuts, I tell you. The kind of money you will pay, this is a peanut, I would say. Because whatever you invest in the course, for the course, for Nadi astrology, you learn in half of the course time. 6 months course, you learn the whole fees in maybe less than 3 months. Maximum 6 months, the whole time will spend. If you spend 1 lakh rupees on this course, 1 lakh you will learn within 3 months or 4 months. And then the whole life you will be earning like that. So that is the kind of potential it has. And people are doing good. Understand this. 30, 40, 50,000 is very average to learn after learning astrology. I don't know if my students are here or not. I think if somebody is there, they can tell you also. Okay.
Maybe somebody will join sooner or later. Okay. So what I'm saying is, you know, this form of astrology is very rare. Very rare. Nobody is, very few people are teaching. Most of the world is teaching something or the other, Vedic astrology, this astrology, that astrology. And in all the forms, what I have seen, there are many forms of Bhrigu Nadi also, Bhrigu Nandi Nadi, Bhrigu this Nadi. But the most accurate form I have seen is Nakshatra Nadi. The thing you can get here, nowhere else you can get. You say in matchmaking, you say divorce cases, you can say profession. You can identify at least 20, 30, 40, 50 kind of professions you can define through Nadi astrology. There are, obviously there are many, many professions, but you can tell, and then about the marriage life, about the children, about the studies, about the education, about the property, about the litigation, about the travel. You will learn each and every aspects of the life, muhurta, everything. There is no topic on the earth which is not. Even you are able to predict, like I do prediction on the Twitter. I don't know who all see my prediction on the Twitter, but you all can, you know, you all can predict like that also if you wish to. Who will win the Lok Sabha election? Who will win the cricket match? Or what will happen? You all can do these kind of mundane prediction also of the country and the world. Many of my students do stock market prediction and they do like 95, 99% accurate. Out of 10 times, they are right at least 8 to 9 times. So that is remarkable. Stock market predicting is very difficult and not possible. Right? So I don't promise you that I'll teach you stock market. It's up to you to practice. But okay. Yeah, somebody has asked me some questions, so we'll address that. But what I see is you all can learn the astrology. Who will win in Rajasthan? Who will win in Munger? Who will win in this? You all can learn and find out. Okay. So this is a 6 months course. I'll repeat again. The 6 months course, 2 hours per week, and time is like Saturday or Sunday. It will be like that. Most probably it is, I think, Sunday. 8 to 9:30, 10 p.m., 8 to 10 p.m. So wherever everybody is like home and something like that. And then you can easily learn. Right? So what I would say is ki you have to see, if you are interested, then you will not get greater opportunity than this to learn the Nadi styles. Say, I'll tell you few secrets. What are the secrets? जो भी यूनिवर्स में, वॉट एवर इज, मैं थोड़ा हिंदी बोलूंगा, जो भी यूनिवर्स में है वो आपके शरीर में भी है. यद पिंडे तद ब्रह्मांडे. जो भी यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट नक्षत्र है वो सब आपके शरीर में भी है. मूलाधारा चक्र से लेकर सहस्त्रधारा चक्र, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन टू द सहस्त्रधारा चक्र, ऑल द प्लैनेट्स आर देयर ऑन योर चक्रा. सब प्लैनेट्स पे, सब चक्रास पे सब प्लैनेट्स होते हैं. तो व्हेन यू लिसन, व्हेन यू डू योगा, प्राणायाम, sadhana, when you listen to mantras, then all the planets get aligned. ठीक है? All the planets get aligned. क्या करना है? सबसे पहले समझो कि मिजरी का रीजन क्या है. लाइफ में मिजरी का रीजन क्या है. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन फॉर द मिजरीज इन द लाइफ. There are 3 kinds of energy, 6, 8, and 12, which are responsible for miseries in the life. 6th house is disease, death, and litigation. 8th house is obstacle, insult, misfortune. 12th house is losses, expenditure, outflow. 6th house is seva also. 8th house is yoga, pranayam, padma sadhana also. I say usually either face obstacle on the yoga mat or in your life. Choice is yours. 12th is losses, expenditure, outflow of money, self loss, money loss. And 12th house is advanced course, silence course also. See, I'm from Art of Living. I'm a teacher also. Although I
I teach Jyotish more than meditation. I my student do get the opportunity to meditate with me. But what I'm saying is, I know art of living, art, and I have done the courses and I have seen how them very effective. So I say, whatever the organization you know, you can do that from. But if you don't know anything, then silence from course from art of living is exceptionally good. If you have losses in your life, your health is not good, your wealth is going, outflow of money is too much, do the silence course. But eligibility is you have to do happiness course first and then the silence course. And if you start doing it, I tell you, do it after two months interval, and you will see within 1 year your whole story will change. Your health will improve, your wealth will improve, your everything will improve. So that is the power of, you know, the silence course. Why? Because meditation is the only way to burn the negative karma. There is no other way. There is no other way to burn the negative karma. सिर्फ ध्यान से ही कर्मों को काट सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है दुनिया में कर्मों को काटने का। बाकी सब नौटंकी है। ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे कुछ नहीं होता। हाँ, कोई अच्छे संत के आगे करोगे, कुछ संत के सानिध्य में करोगे तो 10-20% फर्क पड़ जाएगा, नहीं तो कर्म काटना ही पड़ेगा। बाकी सब नौटंकी है। इधर कुत्ते को खिला लो, इधर दिया जला लो, इधर ये कर लो, उधर वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अरे मानव धर्म है, कुत्ते को खिलाइए, गरीब को खिलाइए, गाय को खिलाइए, पर उससे ये मत सोचिए कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो तो स्वार्थ हो गया। वो खिलाइए, करिए, उसमें कोई बुराई नहीं। पर उससे ये मत सोचिए कि मेरा ये ठीक होएगा है तो मैं ये खिलाऊंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वो गलत है। ठीक है। तो मानव धर्म तो क्या करे, ध्यान से ही कर्म करता है, और कोई तरीका नहीं है। तो साइलेंस कोर्स में क्या हम बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं। जो आप 6 महीने में कर पाएंगे, वो शायद आप 4 दिन में कर लेते हैं। तो इसलिए 4 दिन के साइलेंस के बाद ही आदमी को बहुत फर्क लगने लग जाता है, और बहुत रिलीफ भी मिलता है। तो 6, 8, 12 सेवा करिएगा तो डिजीज, डेथ और लिटिगेशन नहीं होगा। देखिए ब्रह्मा जी ने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ब्रह्मा जी, उन्होंने इतने सारे नियम बनाए, सब लिख दिए, पर उनको भी नहीं पता था। वो भी सारे डाउनलोड हुए उनको, और उन्होंने लिख दिए सारे नियम। ठीक है। भाई कोई मन से दुख देगा तो मन से मिलेगा उसको, शरीर से दुख देगा तो शरीर से मिलेगा। मतलब आपने अगर किसी को शरीर से दुख दिया है तो आपको शरीर में बीमारी होगी। अगर आपने किसी का मन को कष्ट किया है, मन को ठेस दिया है, तो आपको मन का कष्ट रहेगा। शरीर ठीक है, स्वस्थ है, पर मन का कष्ट है, मन दुखी। तो मन तो सेवा तन मन धन तीनों से किए जा सकती है। तन से करो, अगर शरीर में कष्ट है तो शरीर से करो, जाओ किसी को हेल्प करो, फिजिकली काम करो। अगर मन दुखी है तो किसी का मन एलिवेट करो, किसी का कोई दुखी है उसके मन को अच्छा करो। तो जब मन के अच्छा करोगे तो आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। और कुछ नहीं कर सकते तो धन से सेवा करो। भाई धन दोगे तो वो भी सेवा में काउंट होता है। समझ रहे ना। तो तन मन धन तीनों से सेवा करी जा सकती है। फिर मैं बोलता हूँ पद्म साधना करो। पद्म साधना क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो ऐसा है, उसमें इतने सारे आसन है, दैट ऑल अलाइंस ऑल योर चक्रास। एक एक आसन है वो आपके चक्रा को अलाइनमेंट देता है। तो जब पद्म साधना करते हैं, गूगल कर लेकर मिल जाएगा, तो पद्म साधना करेंगे तो देखिए, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन। यू हैव टू चैनलाइज द एनर्जी एंड वाइब्रेशन। इधर आप ऑब्स्टिकल योगा मैट पे झेल लीजिए, उस वाइब्रेशन को वो योगा मैट पे चैनलाइज कर लीजिए, अपनी लाइफ में झेलते रहिए। तो पद्म साधना करेगा तो ऑब्स्टिकल कम हो जाएंगे, साइलेंस कोर्स करेगा तो लॉस कम हो जाएगा। ये 6, 8, 12 का मेन उपाय है। सेवा, पद्म साधना, योगा प्राणायाम और साइलेंस कोर्स, ये करिए, देखिए मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। तो ऐसी रेमेडीज, ये थोड़ी सी रेमेडीज बताएं, ऐसी मंत्रों की फिर रेमेडीज हैं, कुछ और रेमेडीज हैं। हम ये सब पॉजिटिव रेमेडी बताते हैं आपको, और उससे आप जिसको भी बताइएगा उसका बहुत फायदा होने वाला है। वो आपको धन्यवाद करके जाएगा। देखिए मैं लाखों लोगों को कंसल्ट कर चुका हूँ आज तक। लाखों लोगों मतलब लाखों लोगों, लिटरली। ठीक है। मेरे पास शायद, अगर पूरे लाखों लोगों में हो सकता है 5 या 7 लोग ही आए होंगे आज तक, अगर मेरे को याद होगा थोड़ा, जो बोले जी मेरे को फायदा नहीं हुआ, या कुछ नहीं हुआ, या कुछ फर्क नहीं पड़ा। सब लोगों को 99.99% की एक्यूरेसी, सबको कोई ना कोई फायदा हुआ है, उसकी लाइफ में चेंज हुआ है,
उसने अगर मेरी बात मानी है तो, अगर कोई किसी को नहीं हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रही है उसी की तरफ से, या कुछ उसने गलत बताया डिटेल विटेल, तो कुछ कहीं पता नहीं था या कुछ मिस्टेक हुआ उसकी। एक आध परसेंट मेरे पास से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कह सकता भाई, हम लोग इतने परफेक्ट नहीं हैं। पर आज समझ लीजिए कि लाखों केसेस में मेरे पास 10 केस भी नहीं होंगे जिन्होंने कंप्लेंट की होगी, 10 केस भी टोटल नहीं होंगे, शायद 5-7 ही होंगे जिन्होंने कंप्लेंट की है कि जी कुछ नहीं हुआ फॉलो करने से। मैंने कहा चलो कर्म अभी ज्यादा है और करो, और उसके बाद नहीं आए वो कंप्लेंट करने की, शायद कंप्लेंट सॉल्व हो गई, मैं क्या जूम कर सकता हूँ। भाई किसी का कर्म भारी होता है, थोड़ा लंबा फॉलो करना पड़ता है रेमेडीज। तो इतना पावरफुल है रेमेडीज। तो आप रेमेडीज सीखेंगे, लोगों को बताना सीखेंगे कब नौकरी लग जाएगी, कब शादी हो जाएगी, कब बच्चा होगा, कब प्रॉपर्टी हो जाएगी, कब ट्रैवल होगा, फॉरेन में सेटल होगा नहीं सेटल होगा, ये केस जीतोगे हारोगे, जो भी दुनिया में पॉसिबल है और दुनिया के बाहर जो भी, आप सब सीख जाओगे, सब सीख सकते हो। ये तो आपकी सीखने की नक्शा होनी चाहिए कि दुनिया के बाहर का भी सीखना है। भाई चंद्रयान कब लैंड होगा, या आगे हमको कब पता चलेगा कि किसी और प्लेनेट में कोई और जीव है कि नहीं है, वो तो आपकी इच्छा है। पर इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब आप सीख सकते हैं, एंड यू कैन बी वेरी परफेक्ट इन दैट। भाई देखो, मेरी बात पे विश्वास ना करो, मेरा ट्विटर जाके देखो, संजीव_एस्ट्रो। आई हैव डन लॉट्स ऑफ प्रिडिक्शन। आई थिंक 2 4 5 प्रिडिक्शन ही गलत हुई होगी, वो भी कई हजार की होंगी उसमें से। अगर 1000 की होंगी तो 5 प्रिडिक्शन गलत, मतलब आज तक जितनी प्रिडिक्शन की हैं उसमें जब से भी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ 2 4 5 ही गलत हुई है, मतलब 4 5 मुझे याद है, बस इससे ज्यादा गलत नहीं हुई प्रिडिक्शन। तो एक्यूरेसी अगर देखी जाए तो 99 में आएगी, पर फिर भी मैं बोलता हूँ भाई 95 97% बोलता हूँ। ठीक है। तो और मैं नहीं बोल रहा, आप जाके देखिए वहाँ लोगों के व्यूज देखिए, सब देखिए, अभी भी देखो प्रिडिक्शन कर रखी है बीजेपी आएगी, वो आज की प्रिडिक्शन नहीं है, 2 साल पहले की प्रिडिक्शन है। बीजेपी आएगी, और सीट का भी प्रिडिक्शन कर रखा है कितनी सीट आएगी। आज का प्रिडिक्शन नहीं है, 2 साल पहले का है। भाई कोई लोग बोलते हैं कि ये होगा वो होगा, मैं बोलता हूँ ठीक है, चीजें चेंज होती हैं, कैलकुलेशन भी चेंज होती है, पर हमने अपनी अपडेटेड कैलकुलेशन रखी है। और हमारी तो प्रिडिक्शन सारी ऐसी ऐसी गई हैं, 2 2 3 3 साल पहले की हैं, और एकदम ट्रू बाय ट्रू। कोरोना का पूरा दुनिया में किसी ने प्रिडिक्शन नहीं किया होगा, पूरी दुनिया में। मेरे को बताइएगा जरूर अगर किसने किया, मेरे ख्याल से एक आध बंदा शायद हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, जिसने बोला होगा कोरोना 2 साल चलेगा। हमने मई 2020 में बोला था, 2 जुलाई जून जुलाई 2022 के बाद ही जाएगा कोरोना, उसके बाद ही गया। जबकि दुनिया के सारे सौ जो बोलते रहे अभी जाएगा अभी जाएगा, शायद एक आध किसी ने नहीं बोला होगा, नहीं तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं जिसके पास रिटर्न ऐसा कुछ हो जिसने बोला। कोरोना का है, राम मंदिर का प्रिडिक्शन है, रशिया वॉर का प्रिडिक्शन का तो एग्जैक्ट डेट लिखा हुआ है हमने। राम मंदिर का है, लोकसभा के इलेक्शन, पिछले लोकसभा के हैं, फिर यूपी का इलेक्शन कह लीजिए, कितने इलेक्शन हो गए, फिर कितने आईपीएल हो गए, कितने वर्ल्ड कप हो गए। हाँ, इस बार का वर्ल्ड कप थोड़ा इधर उधर हो गया था। ठीक है। बट क्या है कि वो चलो 1% एक एक, अब 100 में से, 1000 में से एक भविष्यवाणी इधर उधर तो होगी, कोई बात नहीं, वो होनी भी चाहिए। जबकि हमें पता था, हमें मॉर्निंग में पता था कि ये गड़बड़ हो जाएगा, पर हमने नहीं चेंज किया। हमने क्या क्या लास्ट मिनट चेंज करना, एक आध गलत भी होना चाहिए, नहीं तो लोग हमको उठा के ले जाए अपने घर ही। भाई भाई चलो, तुम्हारा तो सब बोला सत्य होता है, गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए भी। तो कुछ गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं, और मुंडे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस फाइन। थोड़ा बहुत एरर रेट होना चाहिए ताकि लगे कि भैया इंसान ही है, नहीं तो भगवान बन जाएगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। हमें तो पता था, हमें रिजल्ट पता था, हमें तो एक दिन पहले पता हो जाता है, 24 घंटे पहले पता लग जाता है कि क्या हो रहा है, अगर कुछ चेंजेस भी होते हैं तो पता लग गया था। पर हमने कहा ठीक है रहने दो, और हिंट भी हमने डाल दिया था कि भाई ध्यान करो क्योंकि लफड़ा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हिंट भी हम डाल देते हैं। पर क्या है कि अब लास्ट मिनट में कुछ चेंज नहीं करते, जो बोल दिया सो बोल दिया। मेरा नंबर इंटरनेट पे है, पूरी दुनिया में है, मेरा नंबर छुपा नहीं है। मेरे को कांटेक्ट करने का तरीका एक ही है, व्हाट्सएप। ठीक है। 9810227498, ये नंबर है मेरा। ठीक है। उस पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं डाल देता हूँ, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। पर अपॉइंटमेंट टाइम यूजुअली 1 हफ्ता वेटिंग होता है। हाँ, कुछ अर्ली अवेलेबल होगा स्लॉट तो मिल जाएगा, कुछ अर्जेंट अपॉइंटमेंट होते हैं उसका अलग चार्ज होता है। आपको साइट भी है हमारी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड, उसके थ्रू भी ले सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बेटर है व्हाट्सएप कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी जैसा भी आपको अच्छा लगे। ये वेबसाइट भी है,
इसमें जो है अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसमें कोर्स का डिटेल भी है, कोर्स को भी रजिस्टर कर सकते हैं। और कोर्स की कोई ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत कम फीस है। ये तो अनमोल ज्ञान है जिसकी कोई कीमत नहीं है, प्राइसलेस है। इसकी कीमत नहीं हो सकती, मुझे ये मालूम है, क्योंकि ये आपका जीवन बना देता है पूरा। आप हर महीने उतना अर्न करने लग जाते हैं। इंस्टाग्राम आईडी और ट्विटर आईडी जो मेरा है, वो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 1 मिनट को सबको कर देता हूँ। मेरा फोन नंबर मैंने लिखा, संजीव_एस्ट्रो मेरी आईडी है, ट्विटर पे और इंस्टा पे। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड.com ये मेरी वेबसाइट है। और मेरा फोन नंबर है 9810227498। और आई एम श्योर आप सब लोग इसी ग्रुप पे, मैं इस ग्रुप में आपके स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल दे दूंगा। उनको सुनिए आप, उनको सुनिए और देखिए कि वो कैसे जीरो से हीरो, मेरा एक ही मोटिव है, जीरो से हीरो। कैसे वो जीरो से, हाउ कैन दे हैव बिकम फ्रॉम जीरो टू हीरो। दे डिडंट नो इवन द ए ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और वो आज लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। मतलब ये सपना ही कह सकते हैं। भाई मुझे भी इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिला, ऑनेस्टली बताऊं तो। हमने भी बहुत रगड़ रगड़ के पता नहीं क्या क्या पढ़ाई किया, वो तो गुरु की कृपा हो गई। तो ज्योतिष समझ लो अंदर घुस गया एक तरह से। तो ऐसे ही उनकी आज्ञा से, मैं नहीं कह रहा मैं सिखाता हूँ, मैं तो कहता हूँ ये वो डिवाइन है, उनकी कृपा से मैं सिखाता हूँ। तो उनकी कृपा बह रही है, मेरे थ्रू बह रही है, तो सीख लो भाई। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको मिल जाएगा चीज बहुत अच्छी। ये व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप ही करिएगा, कॉल मत करिएगा प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉल मेरे पास बहुत होते हैं, मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा। वो फिर 500 600 कॉल ऐसे मिस हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप में रिस्पॉन्ड 1 दिन में 2 दिन में जरूर आ जाएगा आपका, बिकॉज आई गेट सो मेनी कॉल्स। तो आप व्हाट्सएप में करिए, अपना डेट टाइम प्लेस भेज दीजिए, मैं आपको फॉर्मेलिटीज बता दूंगा क्या है, और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कंसल्ट करना है तो somebody has asked me question on the chat, so I am saying। ठीक है, अदरवाइज मेरा पर्पज यहाँ आपको कंसल्टेशन देने के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी जरूरत होगी, आप ले लीजिएगा। ठीक है, मेरा पर्पज है आपको सिखाने के लिए, कंसल्टेशन तो मेरे पास ऑलरेडी मालिक की कृपा से आती रहती है, दिन भर आती रहती है। ठीक है, पर हाँ किसी को जरूरतमंद है, किसी को सही में गाइडेंस चाहिए तो पहुंच सकता है, दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम गाइड करते हैं, पूरी दुनिया करते हैं, तो आपको क्यों नहीं करेंगे। बट इस टॉक का पर्पज है मेनली टू मेक यू अवेयर ऑफ द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोर्स, विच इज 6 मंथ्स कोर्स। और इसकी फीस वो ज़्यादा नहीं है, 1 लाख रुपए है, 99,000 है। जो बाहर हैं उनको 1200 USD है। ठीक है, और ये आने वाले टाइम में बढ़ेगी फीस, ज़्यादा नहीं हो, कम नहीं होगी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, कर लीजिएगा। कोई चैलेंज वैलेंज हो तो बताइएगा मेरे को। बट ये है कि यू नो ये इतनी सी फीस है, एडवांस में होती है, और आपका कमिटमेंट बन जाता है। आपकी ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा के छोड़ूंगा, बस आपकी तरफ से एक कमिटमेंट होना चाहिए, आप मेरी क्लास अटेंड करेंगे। एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बना दूंगा, ये कोई नहीं बोलता दुनिया में। ये कोई बोलेगा ही नहीं, सिर्फ मैं ही बोलता हूँ मेरे ख्याल से, मेरी तो किसी और से सुना नहीं। आपसे सिर्फ मुझे कमिटमेंट चाहिए, आप मेरी क्लास अटेंड करेंगे। एस्ट्रोलॉजर मैं बनाऊंगा, वो भी कम से कम 90 85 90% वाला। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया कुछ भी हो गया। क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही इतने कराता हूँ, विद इन 6 मंथ्स जो है आपको 400 500 चार्ट, एंड देन इंटर्नशिप भी होती है, जिसमें सिर्फ लाइव केसेस होते हैं, जो सिर्फ प्रैक्टिस होती है, सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं। उसका अलग फीस है, अलग चीजें हैं। बट अभी तो कोर्स के लिए बात कर रहा हूँ, इंटर्नशिप तो आप जब कर लेंगे उसके बाद की बात है, वो देखेंगे बाद में। बट अभी आप कर लीजिए, अगर आप अच्छा करेंगे कोर्स में ही तो बहुत बढ़िया, फिर सीधे आप प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत मैं कराऊंगा, मैं रहूंगा आपके साथ, ऐसा नहीं। ठीक है, तो चलिए, अब आई थिंक दैट इज गुड, अभी बहुत लेट हो रही है सबको। राकेश, रेशमा, कवलप्रीत, कन्या, मान्य, शिवशा, अमित, गैलेक्सी, अरे नाम तो लिख लीजिए, गरिमा। कोई स्टूडेंट है मेरा यहाँ पर? जल्पा है, गरिमा है, कौन है? अच्छा गरिमा है, गरिमा, गुड गुड गुड। गरिमा बता दो भाई, कुछ फीडबैक दे दो, बताओ कैसा चल रहा है, कैसा पढ़ाया? जल्पा कहाँ है? अनम्यूट हो कर पा रही है, नहीं कर पा रही? मैं करता अनम्यूट, अच्छा वो हो नहीं रहा होगा, सॉरी, मैंने भी कर दिया था सब पर म्यूट ना। 1 मिनट रुको, अभी देखो हो रहा है क्या?
हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ जय गुरुदेव पंडित जी। जय सारे गुरुदेव। क्लासेस तो हमने किए भैया, और मेरे पास टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम था, बट फिर भी आपके क्लासेस अटेंड किए, और जो भी आपने इंटर्नशिप भी हमने ज्वाइन किया, तो सिर्फ उतना ही अटेंड करते करते ही कुछ एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है जो कि मेरे पास क्योंकि जीरो था, और अभी मेरे को एस्ट्रोलॉजी आना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ देखो एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता था, और क्योंकि आपने बोला इट्स सिंपल 1 to 10 नंबर आते हैं तो सीख सकते हो, तो इसलिए हमने ज्वाइन किया कि चलो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, बट लगता था इतना वास्ट है, और इतना टाइम कैसे जॉब और घर के साथ सब कैसे मैनेज करना होगा, बट वो है, और वो साथ साथ करते करते एक ग्रुप बहुत अच्छा बन गया, और सारी चीजों के साथ सब आता जा रहा है, अपने आप ही आ रहा है, वो खुद से कुछ किया नहीं है इतना। हाँ प्लस देखिए आपने एक क्लास। जो चीज बोली कि एस्ट्रोलॉजी इज अ वे टू एनलाइटनमेंट, तो पहले हाँ बहुत अच्छा तुमने पहले याद वाला। दिलाया। वे टुवर्ड्स एनलाइटमेंट, मैं बता रहा हूँ जिसको एनलाइटेड होना है, जिसको अपनी विजडम नॉलेज बढ़ाना है, वो एस्ट्रोलॉजी जरूर सीखे। मैं कह रहा हूँ कुछ और नहीं तो आपका खुद का विजडम इतना बढ़ जाएगा ना कि आप सोच नहीं सकते। यस यस। पहले लगता था कि हाँ ये मतलब कोई वस्तु परिस्थिति व्यक्ति ये सब जो अफेक्ट करते, पहले लगता था कि हाँ उसमें फंस जाते थे। अभी लगता है कि अगर उसका चार्ट देखे शायद उसकी ऐसी दशा चल रही है, इसलिए वो व्यक्ति ऐसा बिहेव कर रहा है, या फिर अपने ही उसमें लगता था अपनी लाइफ में यहाँ यहाँ पे इन इन जगहों पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उस व्यक्ति को जिम्मेदार समझने की जगह अपना चार्ट ही देख के समझ में आता है कि भाई ये गड़बड़ है, फिर वो व्यक्ति का दोष नहीं है, वो तो पोस्टमैन है, वो कर्म कटवाने आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल बहुत सही। अच्छा नॉलेज है। बहुत सही बहुत सही। आप खुद देखोगे, आप बोलते हो मेरा पति गड़बड़ है, मेरा पत्नी गड़बड़ है, मेरा ये गड़बड़ है, बहुत सही बोला गरिमा। सब आपके चार्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके साथ होगा क्या। 90% ऑफ द थिंग्स आर फिक्स इन योर चार्ट। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा शेयर किया गरिमा, थैंक यू सो मच। तो देखिए, जो हाँ गुरु की दया से और चीजों से आप बहुत चीजें चेंज कर पाते हैं, बहुत चीजें कर पाते हैं, तो वो कर पाएंगे आप, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। बट क्या है कि आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा वो रास्ता। वो रास्ता भी हम बताते हैं। तो व्हाट आई से यूजुअली इज एस्ट्रोलॉजी इज अ वे, इज a strong pillar for the enlightenment. Astrology is a very strong pillar towards enlightenment. ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी, अगर आप कुछ नहीं चाहते अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ज्वाइन करें, ज्वाइन फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जलपा यू आर देयर, देन यू कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। जलपा शेयर करो अपना एक्सपीरियंस जरा। आर देयर एनी अल्टरनेट ऑप्शंस फॉर अर्निंग मनी बिसाइड्स कंसल्टेशन? नहीं, ज्योतिष में तो यही कंसल्टेशन का ही थ्रू है, और कैसे करेंगे बताइए, और क्या वे हो सकता है। अगर आपको, हाँ अनम्यूट, अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको थोड़ा 1-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएंगे। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जलपा, 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, जिसको अनम्यूट करना हो मेरे को हाथ खड़े कर दीजिए, क्वेश्चन भी कुछ पूछना हो, नहीं तो टाइप कर दीजिएगा। हाँ, जलपा हाँ बताओ भाई। जलपा मैंने अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट इट। जलपा भी बाहर है शायद, बट आई थिंक अनम्यूट हो पा रहा है। जलपा नहीं हो पा रहा। एक्चुअली मैंने ना कुछ ऑप्शन कर दिया था, चूज फास्ट अनम्यूट। अभी करो, हो जाएगा। यू कैन अनम्यूट इट जलपा, आई थिंक इट विल हैपन। आई थिंक कुछ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ बताइए बताइए। पंडित जी मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। आपका कोई वीडियो बात क्यों नहीं नहीं, आ मैं रहा बाहर हूँ वैसे, बट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हैज गिवन मी रियली अ लॉट बिग चेंजेस इन माय लाइफ।
इट्स रियली हेल्पिंग मी इन ऑल ओवर वॉक्स ऑफ माई लाइफ। और जैसे पंडित जी का विजन है कि हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, ये एक्चुअल में जब मैंने किया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि ये कितना हेल्पफुल है इन ऑल वेज, लाइक अर्निंग से लेके मेंटल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेटस, सब लेवल पे बहुत ही इम्पेक्ट करता है। और जो पंडित जी की रेमेडी है, जो सिखाने का तरीका है, वो बहुत माइंड ब्लोइंग है, सबने करना चाहिए। और जैसे पंडित जी बोलते हैं, जिसको 0 से 10 तक के नंबर आते हैं ना, वो सीख सकता है। और ये अपन बड़े बच्चों का जैसे इंट्यूशन पकड़ लो, वैसे ही है, बहुत पावरफुल है। शुड नॉट मिस दिस चांस। हाँ, मिस मत करिए। मैं अभी जो हाँ ग्रुप में आपको जो है डिटेल भेज दूंगा, आप लोग सब उस ग्रुप में तो हैं ही। मैं आपको ये डिटेल भेज देता हूँ कोर्स की, ठीक है। बिफोर यू ऑल गो, आई जस्ट सेंड यू द कोर्स डिटेल। आप लोग देखिए, समझिए और रजिस्टर करिए कोर्स को, और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, बता दीजिए कि भाई मैंने कोर्स रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। तो ये ज़रूर करिए, छोड़ने वाली चीज़ है नहीं, ऐसा बार बार मौका नहीं आता। ठीक है। और देखो शिल्पा ने क्या इतनी अच्छी बात बताई, आपका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस देखो। लोग जो पहले पूछते नहीं थे आपको, आपके पास टाइम लेने आएंगे, आपका आपका पाँव छुएंगे, ठीक है, आपको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। अब पाँव, चलो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता पाँव छूने को, बट आपको कितना रिस्पेक्ट और सम्मान मिलता है, आप ये सोचिए, ठीक है। आपको जो है एक जिसे कहते हैं कि क्लास अगर मिस हो जाती कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलती है आपको, रिकॉर्डिंग इज गिवन, जूम रिकॉर्डिंग इज गिवन, सारी चीजें मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, आप सुन सकते हैं, तो वो सब चीजें अवेलेबल हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डिटेल भेज दी है, आप लोग रजिस्टर करिए, मिस मत करिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पर, तो 23-24 लोग हैं, और इतनी भी सीट्स हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, पर्टिकुलर सेशन सारी रिकॉर्डिंग सेशन शेयर होती हैं आपको, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती है ना, वॉट एवर, आई टेक ऑल द सेशंस लाइव, ऐसा नहीं होता कोई रिकॉर्डिंग। हाँ, बेसिक की 2-4 वीडियो मैं वीडियो देता हूँ देखने के लिए, सब सेशंस लाइव होते हैं, क्वेश्चन आंसर लाइव होते हैं। फिर आप 2-3 महीने जब सीख जाते हैं तो मैं डाउट्स भी लेता हूँ, आप अपने कहीं दोस्त के चार्ट लाए, किसी के चार्ट लाए। इनफैक्ट आपको जो कहते हैं ना कि आप जब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, वो भी मैं कराता हूँ, जब आप खुद चार्ज करने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ चलो पैसे मेरे को नहीं चाहिए, आप चार्ज करो, आप पैसा रखो, कोई डिस्कशन डाउट है मेरे से पूछो, ठीक है। तो ऐसा है। कुछ बोलना है क्या गरिमा, कुछ बोलना है? अच्छा, 1 मिनट रुको, अनम्यूट करता हूँ। बोलो, जैसे बोलो। फिर पंडित जी, एक चीज और मुझे शेयर करना था कि जब भी मैंने स्टार्ट किया था ना कि ज्वाइन करना है, तो उस वक्त का जॉब, क्या कोविड का टाइम था, उसके बाद वाला बैच ज्वाइन किया, तो जॉब का कुछ श्योर नहीं था, और फी का सोच रहे थे कि इतना पे करना पड़ेगा, तो कैसे, मतलब थोड़ा सा मन में आता था। तो जब हमने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया ना, उसके बाद ही जॉब हो गया, और आगे इंटर्नशिप में भी इजीली एनरोल किया। मतलब वो कुछ होता होगा शायद, 8 हाउस का एनर्जी उससे बैलेंस हुआ या क्या हुआ, और अपने या आप ही वो अर्निंग होने लगा। तो जो लोग भी मन में सोचते हैं कि अर्निंग का कुछ, वो खुद से होता है। अर्निंग का हो जाए तो बहुत अच्छा शेयर किया गरिमा, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जब आप ज्योतिष सीखते हैं ना, तो आपका 8th हाउस का एनर्जी अलाइनमेंट हो जाता है। 8th हाउस का एनर्जी अलाइनमेंट हुआ मतलब क्या हुआ, आपके लाइफ में से ऑब्स्टिकल्स कम हो जाते हैं। तो क्या है कि देखो, जैसे उन्होंने खुद लाइव के शेयर कर दिया, अच्छा वो तुमने शेयर किया, मेरे को याद नहीं था। तो क्या है कि भाई उनका जॉब नहीं था, ट्राई कर रहे थे, तो ऑब्स्टिकल आए थे हर काम में। तो कल सीखने से 8th हाउस ऑब्स्टिकल एनर्जी कम होता है, तो आपकी लाइफ में खुद भी ग्रोथ होती है हर चीज। तो बिल्कुल मैं सोचिए अरे ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से होगा, सब हो जाएगा आपका। आप करिए, आप ज्योतिष करिएगा ना, आप ब्लॉसम हो जाएगा, बस ये मैं बता रहा हूँ, आप खिल जाइएगा बिल्कुल। तो चलिए, अब आई थिंक दिस दिस सेशन इज अबाउट टू एंड। किसी को क्वेश्चन है तो वो हाथ उठा ले, मेरे से पूछ ले, या चैट में डाल दे, मैं आंसर कर दूंगा। इफ यू पुट इन चैट में कुछ क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट।
गरिमा ने बोला है, रेशमा ओके इन केस यू फॉलो रेशमा। हाँ रेशमा कोई दिक्कत नहीं। आर देयर एनी अल्टरनेटिव ऑप्शंस और अर्निंग साइड? कंसल्टेशंस ही हैं। बाकी अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको 2-3 साल अच्छे खासे, आप चार्ट कंसल्ट कर लेते हो, आप पढ़ा भी सकते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैं जैसे ज्योतिष पढ़ाता हूँ, आप भी, जो मेरे को तो चाहिए और लोग, बहुत सारे लोग चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए। मैं अकेला कितने को पढ़ाऊंगा भाई, पूरी दुनिया पढ़ाने में। माई विजन इज एवरी होम वन एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो ऐसे तो होगा नहीं, मुझे ही बहुत सारे पढ़ाने वाले चाहिए। और मैं ये पढ़ाई तो 1-2 साल, पता नहीं कितने साल, जल्द जा बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक शायद मेरे ख्याल से, पता नहीं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, पता नहीं, वो तो मालिक पे डिपेंड करता है। पर फिर बहुत बिजी हो जाऊंगा ना, कम बैच ले पाऊंगा, कम कर पाऊंगा, तो लोग चाहिए। अब आगे जो मुझे दिख रहा है, आई विल बी वेरी बिजी। नहीं नहीं, आप किसी को भी फॉलो करिए, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी गुरु को फॉलो करिए, किसी भगवान को फॉलो, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए वो आपकी श्रद्धा है। ज्योतिष तो डिवाइन साइंस है, डिवाइन साइंस बोला गया, इससे किसी एक किसी को अटैच नहीं है। सपोज आप साईं बाबा को मानते हैं, किसी और गुरु को मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एवरीबडी इज वेलकम। मेरे तो स्टूडेंट क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, सीईओज भी हैं, तो मेरे तो स्टूडेंट हर लेवल के हैं। ठीक है, तो आप आइए, सब लोग आइए, ऑल आर वेलकम। मैंने डिटेल शेयर कर दी है। किसी और कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो मेरे को 1-to-1 चैट कर लेगा, पूछ लेगा। ठीक है जी, चलिए, गुड, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, जय गुरुदेव, हैव ए गुड डे, बाय बाय।